حق گو اس باطل پہ تاعمر رہے غالب، ہر جنگ میں وہ جیتے بے خنجر و بے شمشیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ پر سعودی حکومت نے جو مظالم ڈھائے تھے اس کی کیفیت بھی آپ حضرات سماعت کرتے چلیں۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند اپنی شریک حیات کے ساتھ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ عرفات سے واپس لوٹنے کے بعد سعودی حکومت نے رات کے وقت مکہ معظمہ میں آپ کو قیام گاہ سے گرفتار کر لیا، بلا وجہ 11 دن جیل میں رکھ کر بغیر مدینہ شریف کی زیارت کرائے ہندوستان بھیج دیا۔ بمبئی 13 ستمبر سن 1986 عیسوی سن 1407 ہجری میں ابراہیم مرچنٹ روڈ مینارہ مسجد کے قریب رضا اکیڈمی بمبئی کے زیر اہتمام جانشین مفتی اعظم ہند کے مکہ مکرمہ میں بھیجا گرفتاری پر سعودی حکومت کے خلاف ایک شاندار اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ رضوی امجدی نے فرمائی۔ بمبئی کے علماء مشائخ ائمہ مساجد کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے اکابر علماء نے شرکت فرمائی۔ مجمع تقریباً 50,000 افراد پر مشتمل تھا۔ مجمع جوش احتجاج میں سعودی حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتا رہا۔ اخیر میں جانشین مفتی اعظم ہند نے سعودی حکومت میں اپنی گرفتاری اور زیارت مدینہ منورہ کے بغیر واپس کیے جانے کے سے متعلق اپنا یہ مختصر سا بیان دیا۔ فرماتے ہیں 13 اگست سن 1986 عیسوی شب میں 3 بجے اچانک سعودی حکومت کے CID اور پولیس کے لوگ میری قیام گاہ پر آئے اور مجھے بیدار کر کے پاسپورٹ طلب کیا، پھر میرے سامان کی تلاشی کا مطالبہ کیا۔ میرے ساتھ میری پردہ نشین بیوی تھی، میں نے انہیں باتھ روم میں بھیج دیا، پھر CID نے باتھ روم کو باہر سے مقفل کر دیا اور وہ لوگ سپاہیوں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے، مجھے ریوالور کے نشانے پر حرکت نہ دینے کی وارننگ دی، میرے سامان کی تلاشی لی۔ میرے پاس حضرت مولانا سید علوی مالکی رضوی مدد اللہ کی دی ہوئی چند کتابیں اور کچھ کتابیں اعلی حضرت کی اور دلائل الخیرات شریف تھی۔ ان تمام کتابوں کو اپنے قبضہ میں لیا، مجھ سے ٹیلی فون کی ڈائری مانگی جو میرے پاس نہ تھی۔ میرا، میری بیوی کا اور میرے ساتھیوں کے پاسپورٹ، ٹکٹ اور کتابیں ہمراہ لے کر مجھے CID آفس لائے اور یہ کے بعد دیگرے میرے رفقا محبوب اور یعقوب کو بھی اٹھا لائے۔ مجھ سے رات میں رسمی گفتگو کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے اوپر جمعہ فرض نہیں، لہٰذا میں نے اپنے گھر میں ظہر پڑھی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم حرم میں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں حرم سے دور رہتا ہوں، حرم میں طواف کے لیے جاتا ہوں، اس لیے میں حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مجھ سے کہا کہ آپ کیوں اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ تاچھ کرتے ہیں؟ مجھ سے پھر بھی اصرار کیا گیا تو میں نے کہا کہ میرے مذہب میں اور آپ لوگوں کے مذہب میں اختلاف ہے، آپ حنبلی کہلاتے ہیں اور میں حنفی ہوں، اور حنفی مقتدی کی رعایت غیر حنفی امام اگر نہ کرے تو حنفی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں نماز علیحدہ پڑھتا ہوں۔ مجھ سے حضرت علامہ سید علوی مالکی مدد اللہ کی کتابوں کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے ملے؟ میں نے کہا کہ یہ کتابیں مجھے انہوں نے چند روز پہلے دی ہیں۔ جب میں ان سے ملنے گیا، مجھ سے سوال کیا کہ یہ پہلی ملاقات تھی؟ میں نے کہا ہاں، یہ پہلی ملاقات تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی چند کتابیں دیکھ کر جو نعت اور مسائل حج کے متعلق تھیں، پوچھا ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرے دادا تھے۔ اس مختصر سی انکوائر کے بعد مجھے رات گزر جانے کے بعد فجر کے وقت جیل بھیج دیا گیا۔ 10 بجے پھر CID سے گفتگو ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں کتنے فرقے ہیں؟ میں نے شیعہ، قادیانی وغیرہ چند فرقے گنائے اور میں نے واضح کیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیانیوں کا رد کیا اور اس کے رد میں 6 رسالے بھی لکھے ہیں۔ ہم پر کچھ لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں
और आपको ये बताया है कि हम कादियानी एक हैं। ये गलत है और वो वही लोग हमें बरेलवी कहते हैं जिससे ये वहम होता है कि बरेलवी किसी नए मजहब का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। CID के पूछने पर मैंने बताया कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने किसी नए मजहब की बुनियाद नहीं डाली, बल्कि उनका मजहब वही था जो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा व ताबईन और हर जमाने के सालिहीन का मजहब है, और ये कि हम अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलवाना ही पसंद करते हैं। और हमें इस मकसद से बरेलवी कहना कि किसी नए मजहब के पैरू हैं हम पर बुहतान है। CID के पूछने पर मैंने वहाबी और सुन्नी का फर्क मुख्तसर तौर पर वाज़ेह किया। मैंने कहा कि वहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब और उनकी शफाअत और उनसे तवस्सुल और इस्तिमदाद और उन्हें पुकारने के मुनकिर हैं और इन उमूर को शिर्क बताते हैं, जबकि हमारा ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल जायज़ है और उन्हें पुकारना भी, और ये कि वो सुनते भी हैं और अल्लाह के बताए से गैब को भी जानते हैं, और अल्लाह ने उनको शफाअत का मनसब भी अता फरमाया। और इल्म गैब पर CID के पूछने पर आयात कुरानी से मैंने दलीलें कायम की और ये साबित किया कि नबूवत इत्तिला अलल गैब ही का नाम है, और नबी वही है जो अल्लाह के बताने से इल्म गैब की खबर दे, और ये कि नबी के वास्ते से हर मोमिन गैब जानता है, जैसा कि कुरान मुकद्दस में मनसूस है। CID के पूछने पर मैंने बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादे विसाल भी गैब की खबर है, इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत बाकी है और नबूवत गैब जानने ही को कहते हैं। फिर ये कि आयतों में ऐसी कैद नहीं कि जिससे जाहिर हो कि बादे विसाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं जानते। एक और नशिस्त में CID के मुतालबा पर मैंने तवस्सुल की दलील में इब्तहू इलैहिल वसीला की आयत पढ़ी और ये बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल मिन जुमला आमाल सालिहा है, और ये कि किसी अमल का सालेह होना और वसीला होना इस शर्त पर मौकूफ है कि वो मकबूल हो। और सरकार रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबह मकबूल बारगाह उलूहियत हैं, बल्कि सैयदुल मकबूलीन है, तो उनसे तवस्सुल बदरजे औला जायज है और तवस्सुल शिर्क नहीं। CID के कहने पर मैंने मजीद कहा कि किसी से इस तौर पर मदद मांगना कि अल्लाह के सिवा उसको मुस्तकिल और फाइल समझे शिर्क है, और हम इस तौर पर किसी से मदद मांगने के कायल नहीं हैं। हाँ, अल्लाह की मदद का वसीला जानकर किसी मकबूल बारगाह से मदद मांगना हरगिज शिर्क नहीं। CID के एक सवाल के जवाब में कहा कि हम में और वहाबियों में ये फर्क है कि वो हमें तवस्सुल वगैरह उमूर की बिना पर काफिर और मुशरिक बताते हैं, लेकिन हम उनको महज इस बिना पर काफिर और मुशरिक नहीं कहते, यानी उसके वजूहात और हैं। दूसरे दिन मेरे इन बयानात की रोशनी में CID ने मेरे लिए एक इकरारनामा उसने लिख कर मुझे सुनाया, जो यूं था, मैं फला इब्ने फला बरेलवी मजहब का मुती हूँ। मैंने एतराज किया कि मैं बारहा कह चुका कि बरेलवी कोई मजहब नहीं, और अगर कोई नया मजहब बनाम बरेलवी है तो मैं उससे बरी हूँ। आगे इकरारनामा में उसने यूं लिखा कि इमाम अहमद रजा का पैरू हूँ और बरेलवी में से एक हूँ, और हमारा अकीदा है कि सरकार से तवस्सुल और इस्तिगासा और उनको पुकारना जायज है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं और वहाँ भी इन उमूर को शिर्क बताते हैं, और ये कि मैं उनके पीछे इस वजह से नमाज नहीं पढ़ता हूँ, हम सुन्नियों को मुशरिक बताते हैं। इकरारनामा के आखिर में मेरे मुतालबे पर उसने ये इजाफा किया कि बरेलवियत कोई नया मजहब नहीं है और हम लोग अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहलवाना ही पसंद करते हैं। फिर मुख्तलिफ नशिस्तों में बार बार वही सवालात दोहराए। बाद में मुझसे मेरे सफर लंदन के बारे में पूछा और कहा कि क्या वहाँ आपने किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। मैंने जवाब दिया कि कॉन्फ्रेंस हुकूमत के पैमाने और सियासी सतह पर होती है। हम लोग न सियासी हैं न किसी हुकूमत से हमारा कोई राब्ता है। CID के पूछने पर मैंने बताया कि लंदन के उस इजलास में जिसमें मैं शरीक था बनाम बरेलवियत मसाइल पर मुबाहिसा न हुआ, बल्कि इत्तेहाद इस्लाम और तंजीमुल मुस्लिमीन पर तकारीर हुई और इस जलसे का खर्च वहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने उठाया और उसमें ये मुतालबा किया गया कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के पैरू अहले सुन्नत व जमात को राबते आलम इस्लाम में नुमाइंदगी दी जाए।
जिस तरह नदियों वगैरह को राबता में नुमाइंदगी हासिल है। CID के पूछने पर मैंने बताया कि ये तजवीज़ बिल इत्तेफाक राय पास हो गई थी। तीसरी नशिस्त में जब 2 नशिस्तों की तफ्तीश खत्म हो चुकी और मेरा इकरारनामा खुद तैयार कर चुके तो मुझसे एक बड़े CID ऑफिसर ने कहा कि मैं आपका आपके इल्म और उम्र और शख्सियत की वजह से एहतराम करता हूँ और आपसे मखसूस औकात में दुआओं का तालिब हूँ। गिरफ्तारी का सबब मेरे पूछने पर उसने बताया कि आपका केस मामूली है, वरना उस वक्त जब सिपाही हथकड़ी डालकर आपको लाया था मैं आपकी हथकड़ी ना खुलवाता। मुख्तसर ये कि मुसलसल सवालात के बावजूद मेरा जुर्म मेरे बार बार पूछने के बाद भी मुझे ना बताया, बल्कि यही कहते रहे कि मेरा मामला अहमियत नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद मेरी रिहाई में ताखीर की और बगैर इजहार जुर्म मुझे मदीना मुनव्वरा की हाजिरी से मौकूफ रखा। और 11 दिनों के बाद जब मुझे जिद्दा रवाना किया गया तो मेरे हाथों में जिद्दा एयरपोर्ट तक हथकड़ी पहनाए रखी और रास्ता में जोहर की नमाज के लिए मौका भी ना दिया गया। इस वजह से मेरी नमाज जोहर कज़ा हो गई। सितंबर 1986 ईस्वी सन 1407 हिजरी में दौरान हज जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को हुकूमत सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा में बिला जुर्म सिर्फ गलबे नजदियत की खातिर गिरफ्तार करके 11 दिन तक कैदोबंद में रखा और मजीद सितम ये कि उन्हें दयार हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से भी महरूम कर दिया। लेकिन जानशीन मुफ्ती आजम अपने मौकिफ और मसलक पर कायम रहे, उनके पाए से बात में लग्जिश नहीं आई। आपकी गिरफ्तारी से आलम इस्लाम में गम और गुस्सा की एक लहर दौड़ गई थी और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद बेशतर इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक में सिवाद आजम अहले सुन्नत के एहतजाजात का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। अखबारात और रसायल ने भी जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की इस बेजा गिरफ्तारी की मजम्मत की। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बरतानिया, रजा एकेडमी मुंबई, सुन्नी जमीयतुल उलमा, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान और छोटी बड़ी अंजुमनों और जमातों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे पूरे बर सकीन में किए और हुकूमत सऊदिया से माफी का मुतालबा किया। जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद की गिरफ्तारी के रद्द अमल में कायदीन मिल्लत ने लंदन में सऊदी हुकूमत के बादशाह शाह फहद, शहजादा अब्दुल्लाह और तुर्की बिन अब्दुल अजीज वजीर ममलकत से तवील मुलाकातें की, जिनमें अल्लामा अरशदुल कादरी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना सैयद गुलामुस सैयदीन, मौलाना शाहिद रजा नईमी, शाह मोहम्मद जिलानी सिद्दीकी, मौलाना यूनुस काश्मीरी, मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी और शाह फरीदुल हक और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने हुक्मरान सऊदिया को पुरजोर अंदाज में गिरफ्तारी पर एहतजाज दर्ज कराया और हरमैन शरीफैन में हर मसलक के लोगों को अपने अकीदा के मुताबिक नमाज पढ़ने और दीगर अरकान करने पर मुतालबा किया, जिस पर उन सरबराहान ममलकत ने फौरन मंजूर किया और उम्मत मुस्लिमा के लिए सऊदी हुकूमत ने एक एलानिया जारी किया कि हरमैन शरीफैन में हर मसलक व मज़ाहिब के लोग अब आज़ादाना तौर पर अपने तरीकों से इबादत करेंगे। कंजुल ईमान पर पाबंदी मेरे हुक्म से नहीं लगाई गई है, मुझे इसका इल्म भी नहीं है। अब मिलाद की महफिल आज़ादाना तरीके पर होंगी, किसी पर मुसल्लत नहीं किया जाएगा, सुन्नी हुज्जाज किराम के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। बिलाखिर कुर्बानी रंग लाई। अहले सुन्नत के एहतजाजात ने हुकूमत सऊदिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया और लंदन में सऊदी फरमारवा शाह फहद अब्दुल अजीज को ये ऐलान करना पड़ा कि हरमैन शरीफैन में हर मसलक के लोगों को उनके तरीके पर इबादत करने की आज़ादी होगी। अरकान वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बरतानिया ने लंदन में शाह फहद और उनके भाई प्रिंस तुर्की इब्न अब्दुल अजीज शहजादा अब्दुल्लाह से मुलाकात करके इख्तिलाफी मसाइल पर मुज़ाकरा के सिलसिले में गुफ्तगू की। अल्लामा अरशदुल कादरी ने सऊदी सफीर को बज़बान अरबी एक मेमोरेंडम भी दिया। 21 मई सन 1987 ईस्वी सन 1407 हिजरी को सऊदी सफारत खाना दिल्ली से जानशीन मुफ्ती आजम के दौलत कदा पर एक फोन आया और खुद सफीर सऊदिया बराए हिंदुस्तान मिस्टर फवाद सादिक मुफ्ती ने आपको ये खबर दी कि हुकूमत सऊदी अरब ने आपको ज़ियारत मदीना मुनव्वरा और उम्रा के लिए 1 माह का खुसूसी वीज़ा दिया है और हम आपसे गुज़िश्ता मामलात में माजरत खां हैं। जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद 24 मई सन 1987 ईस्वी
सन 1407 हिजरी को सऊदी फ्लाइट से वाया जद्दा मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सऊदी सफारत खाना ने आपकी आमद की इत्तला टेलेक्स, जद्दा और मदीना हवाई अड्डों पर दे दी थी। सऊदी सफीर मिस्टर फवाद सादिक मुफ्ती ने इस मामला में काफी दिलचस्पी ली। जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद उमरा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर सऊदी में 16 रोज तक क़याम के बाद वतन वापस आए। दिल्ली हवाई अड्डा और बरेली जंक्शन पर हजारों अकीदतमंदों और मुरीदीन ने पुरजोश इस्तकबाल और खैर मकदम किया। ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे पीर।